Namaskar, and a very warm welcome to all of you in this episode. We have been talking about the importance of education and in that too, the ancient education of our country. And how did it contribute making things better, not only for our country, but for the entire world. So in that process, I was thinking of taking a few more things related to how great and how good we were doing in the past. But and meanwhile, I came across one article in one of the English newspapers today morning, and that was related to one of the state boards of our country. NEP 2020 had advocated conducting board examination, that is particularly classes 10th and 12th, twice a year. And this particular state board, that is Karnataka State Board, had implemented the same recommendation during the session 23-24. And they did not allow children to take repeat test only a second time, but even third time also. So that way I can say that the board examination was conducted by that state board thrice in a year. And what I read in the newspaper was that first, the main examination was conducted during the same time as any other school board would conduct the annual examination, that is the month of March/April. And then the first improvement performance test or retest was held in the month of May, and the third was in the month of June. So this was nothing very very unusual, but of course something new implemented by one of the state boards. And the interesting part was the information which I got was that the children who took the repeat test were mainly from science background or of science stream, as we call it in our country. And in that also, the maximum number of children who opted for a repeat test were in physics, then in chemistry, then in mathematics, and then in biology. Of course, there were some students in English also and in some other subjects, but that number was very minimal. And when their performance was analyzed, it was found that in the repeat test, their performance had improved, and 65% of the children who took repeat test improved their performance in physics, 62% improved their performance in chemistry, 60% improved their performance in mathematics, and around 40% of the children improved their performance in biology. Now, I was just trying to understand that what would have happened during this time, because the gap between the two examinations, that is the main examination in the month of March, April, and the second examination, that is in the month of May. So how could that 65% of the children improve their performance? Was it the question papers, difficulty level different, or the children could learn much more or understand physics or chemistry or mathematics better than what they could do till the time 15 days back or a month back when the main examination was held? So I don't exactly have the answer, but one question kept coming to my mind. As of now, what I see is that the major focus has been on conducting the examination. To conduct it in a transparent manner, in a manner so that children perform well. And sometimes I do feel that we are trying to make more children pass than making them to learn. So the focus from my point of view should be more on learning than necessarily they performing very well in their board examination or any other examination. But that seems to be what is happening. So when it comes to science, otherwise also, if you see the schools around in India, many places you would find, I perhaps mentioned it before also, that mathematics has been one subject which perhaps our children really fear a lot. And then comes science, and in science also physics probably is one subject which they feel like that is difficult for them.
But these were the subjects. I mean, if you remember my two videos when I was talking about ancient school education and then, of course, universities. I mean, science and mathematics were the key, along with the languages and rest of the subjects. And our, I mean, ancestors, the students that time, the teachers that time were absolutely full of, I mean, complete. I would say almost complete when having the knowledge about that subject. And now, of course, we do have physics, chemistry, mathematics, biology, these separate subjects. There's a boundary drawn. But at that time, I spoke about multidisciplinary approach. And the students and the professors were very good in other subjects also, and not good only in their main subjects for which they were known. And this really continued for quite late. And if you read about any of the physicists or anybody who has been a scientist or something like that, you will find that the person would have done great in physics, would have invented something, would have really given some principle of physics, a new one, a different one, but was equally good in mathematics, was equally good in chemistry, was equally good in other subjects. And I do recall one particular person here, Bernoulli's theorem, Bernoulli's principle. You all would have perhaps come across about him. I mean, this man was good in anatomy, he was good in physiology, he was good in astronomy, and he was good in mathematics, he was good in biology, and he was, of course, very good in physics, hydrodynamics. I mean, you know, he had given this principle based on that, and then principle of continuity and all these things. I won't get into detail of physics and what did he do. Why did I mention him? Only the reason was that, I mean, these people were good in almost all subjects, and hence they were able to bring things together. So what has gone wrong on the way? What has happened that our children started having some fear for mathematics or such subjects? Probably our focus was more on getting the right answer. Our focus was to get the examination qualified or passed. Our focus was to getting more marks than really understanding the subject. Because what happens when you are trying to understand something or learn something great, you will have to use lot many methods. Your brain is going to be used in as many ways as possible, and sometimes you may not get the answer based on what is the knowledge available to everyone around. So people might say that you don't know or you have done it wrong, but it is not necessary. What you have tried to apply there would have been something basic which you had learned before, used it. Maybe the application would not have been correct, or maybe application was correct, what answer you got was correct, but the other person who was around was not that competent enough to have understood that your answer was a correct answer. तो जब ये बातें मेरे दिमाग में घूम रही थी तो मुझे लगा कि नहीं, ये तो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा अगर हम साइंस और मैथ्स को अगर ऐसे ही छोड़ देंगे, ऐसे ही जाने देंगे और नंबर आ गए, हम खुश हो गए, परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट हो गया, हम समझ गए कि बच्चा साइंस में बहुत नहीं, बच्चे को साइंस मैथमेटिक्स वैसे ही आनंद आना चाहिए जैसे कि उसको बाकी सब्जेक्ट में आता है या बाकी काम करते हुए आता है. हम लोग एज टीचर्स और एज पेरेंट्स हम थोड़ा सा उस पर ध्यान दें और अपने बच्चों को उसके ऊपर एक्सपोज करें. सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है उसकी डेफिनेशन रट लिए, डेफिनेशन लिखाइए, उसकी मुझे यूनिट बता दीजिए और उसको लिखाइए, उस पर आपको नंबर मिल जाएंगे, आपका परफॉर्मेंस अच्छा हो जाएगा. जब तक हम ये करते रहेंगे तब तक बच्चों का शायद इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट्स में ना आए. और एक और बेहतर तरीका जो सब लोग कर रहे हैं, अब प्रोफेसर वर्मा का बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं हमारे यूट्यूब के ऊपर, आप देखिए उनको और समझिए कि कितने आसान तरीके से उन्होंने जो चीज़ें हमारे चारों तरफ हो रही हैं उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए, उन्हीं का एग्जाम्पल लेते हुए उन्होंने हमें फिजिक्स के और बाकी साइंस के बहुत सारे प्रिंसिपल्स बड़ी आसानी से समझा दिए. अब मैं आज आप लोगों से सिर्फ 2-3-4 चीज़ों के बारे में बात करूंगा. हम लोग चारों तरफ देखते हैं चीज़ें, उन्हीं पर हम कहते हैं. मेरा सवाल है, रोटी क्यों फूलती है? अब रोटी भी जब फूलती है तो आप देखेंगे गेहूं की रोटी सबसे ज़्यादा फूलती है. जो बाजरे की रोटी है, मिलेट्स की रोटी है, फूलती है थोड़ी बहुत, बट बहुत कम फूलती हैं, वो उतनी नहीं फूलती है. हम लोगों ने कितना ध्यान दिया है इसको एज एन एग्जाम्पल लेकर के क्लास में पढ़ाते वक्त. जब तक हम ये सवाल हमारे दिमाग में नहीं उठेंगे, छोटे छोटे सवाल जब तक नहीं उठेंगे, जिनको हम मान लेते हैं, कई बार क्या बच्चे सवाल इसलिए भी नहीं पूछते कि उनको एक बार हंस दिया जाता है, ये भी कोई सवाल हुआ. अरे सवाल कोई भी गलत नहीं होगा. अब उसकी क्वालिटी हो सकता है उतनी आप जैसी अपेक्षा कर रहे हो वैसी ना हो, बट बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, एक बच्चा जो खड़ा हुआ है, रोटी फूल रही है और बच्चे ने सवाल पूछ रही है रोटी क्यों फूल रही है. चूंकि मुझे जवाब नहीं आता है तो मैं कई बार बच्चे को थोड़ा इग्नोर कर देता हूं उसकी बात को, तो बच्चा फिर सवाल पूछने की आदत थोड़ी सी कम हो जाती है. कभी कभी ये क्लास में भी होता है. समटाइम्स एज टीचर्स वी डोंट रियली पे अटेंशन टू सच क्वेश्चंस टू विच
Sometimes people say silly questions. I have always objected to this word silly. No question is silly. All questions are important questions. All are to be taken care of by the teachers and adults and answer children properly. अब देखिए आप पंखे चलते हैं, हम सब लोग पंखा यूज करते हैं घर में, हम लोग घर में सब एसी यूज करते हैं, हम लोग सबके घर में आजकल रेफ्रिजरेटर है। हम लोगों ने समझने की कोशिश की ये कैसे काम करते हैं, कैसे कमरा ठंडा हो गया, एसी में कौन सा ऐसा मैजिक है कि अंदर की गर्मी खींच ली और उस गर्मी को बाहर भेज दिया। कपड़े धोते हैं, एक जमाना था कि कपड़े हम हाथ से धोया करते थे। ऑफ कोर्स अच्छी बात थी, मुझे तो कई बार अच्छा लगता है, एक्सरसाइज हो जाती थी, लेकिन चलो कोई बात नहीं, हमें सुविधा मिली और वॉशिंग मशीन बनी और वॉशिंग मशीन हमारे कपड़े धो देती है फटाफट 15 मिनट में, 20 मिनट में, आधे घंटे में, फटाफट 5 मिनट में सूख जाते हैं, आयरन करके कपड़े पहन के चल देते हैं, काम जल्दी होगा। लेकिन अब ये वॉशिंग मशीन काम कैसे करती है, ये कभी हमने इसके ऊपर ध्यान देने की कोशिश की? अब तो ठीक है, इन चीज़ों पे आप नेट के ऊपर भी देख सकते हैं, आप चाहें तो बात भी कर सकते हैं, लेकिन इनके ऊपर हम लोगों ने अनफॉर्चुनेटली ध्यान देना कम कर दिया। हम इनको, चूंकि हमारे सामने चीज़ आ गई है, हमने उसको इस्तेमाल कर दिया एंड वी हैव फॉरगॉटन अबाउट इट। हम सवाल ही नहीं पूछते, और ये सवाल पूछेंगे तब जब हम उन बच्चों को क्लास में उसके साथ जोड़ करके इसको बताएंगे। जब हम फैन की बात करते हैं, अब फैन में सिर्फ क्या ये पंखड़ियां, ब्लेड्स होते हैं खाली? नहीं, फैंस के अंदर इलेक्ट्रिक मोटर भी होता है, इसके अंदर एक कैपेसिटर भी होता है। अब देखिए हमें रोल पता करना पड़ेगा कि कैपेसिटर का रोल क्या होता है। फैन के अंदर कैपेसिटर नहीं होगा तो क्या नुकसान हो जाएगा, ये हमने कभी सोचा? फिर सवाल आता है इलेक्ट्रिक मोटर है क्या? कितने लोग नॉर्मली जानते होंगे इलेक्ट्रिक मोटर तो वही जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहा है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। तो एक तरह का ये डिवाइस है हमारे पास में। और देखिए इलेक्ट्रिक मोटर हर जगह यूज हो रहा है, आपके एसी में भी यूज हो रहा है, आपके रेफ्रिजरेटर में भी यूज हो रहा है, आपके वॉशिंग मशीन में भी यूज हो रहा है, और मैंने फैन का तो आपको बताया। अब इसके बाद में अब आप चाहेंगे कि देखिए साहब आप तो आगे बढ़ गए, आप ही ने जवाब नहीं दिया चीज़ों का। तो जब मैं बात कर रहा था रोटी कैसे फूलती है, मैं आप देखिए कि जब आप आटा गूंथते हैं, आटा गूंथता है, खासकर मैं गेहूं के आटे की बात कर रहा हूं, जब आटा आप गूंथते हैं तो आटा थोड़ा फूल जाता है, थोड़ी देर छोड़ोगे तो और फूल जाएगा वो। जब आप उसकी रोटी बनते हैं, डो लेकर के आप उसका टुकड़ा लेकर के उसको बेल करके जब आप तवे पे डालते हैं, एक तरफ से सिकता है, वो लेयर बनती है, आप दूसरी तरफ से करते हैं, लेयर बनती है, और इसके अंदर एक गैस बन जाती है, उस गैस को कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। और जब वो सिकता है, गर्म होता है, गैस फैलती है, फर्दर गैस को निकलने की जब जगह नहीं मिलती तो वो रोटी फूल जाती है। बेसिक कारण इसका ये माना जाता है। अब उसकी बात आता है फैन। अब फैन के देखिए जो आपके ब्लेड्स होते हैं, वो ब्लेड्स थोड़े एक पर्टिकुलर शेप में होते हैं। अब वो पर्टिकुलर शेप में होने की वजह से जो हवा नीचे होती है, पंखे के नीचे वाली जो हवा होती है, उसको वो घुमाना शुरू कर देता है। हवा को ठंडी नहीं करता है पंखा, ना तो हवा प्रोड्यूस कर रहा है ना हवा को ठंडी कर रहा है, हवा को वो सिर्फ घुमा रहा है। और वो हवा जब हम तक पहुंचती है और हमारे ऊपर शरीर पे लगती है, और जो अगर मान लीजिए थोड़े बहुत हमें पसीने होते हैं या अदरवाइज, तो वो इवेपोरेट होते हैं, और उस इवेपोरेशन की वजह से हमें लगता है कि भाई हवा, ठंडी हवा चल रही है। मैं बात कर रहा था कि कैपेसिटर होता है अंदर। किसी बच्चे ने हमसे पूछा कैपेसिटर ना हो तो क्या पंखा चलेगा? अब मुझे तो लगता है शायद चल जाएगा, बट इनिशियली जब आप ऑन करेंगे, खाली मोटर उसको नहीं चला पाएगा। आपको इनिशियली उसको थोड़ा ज़्यादा करंट देना होता चाहिए। कैपेसिटर का काम है कि उसके अंदर चार्ज ऑलरेडी होता है, वो चार्ज काम आ जाता है उस वक्त में, शुरुआत में। तो शुरुआत में अगर आप देखा, कभी डंडी से या किसी से मारना नहीं चाहिए, पंखे की पंखड़ी पे कभी ना मारो, ऐसा मैं आपको आगाह कर रहा हूँ, नुकसान हो सकता है आपको। लेकिन कई बार हमने देखा कि पंखा नहीं चल रहा होता है, इनिशियली थोड़ा डंडी पे मार देते हैं तो वो चलना शुरू कर देता है। तो उसका क्या होता होगा कि कैपेसिटर कमजोर हो गया होगा उसका। दूसरा कि अगर आप वॉशिंग मशीन की बात करें, तो वॉशिंग मशीन तो सिंपल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उसके अंदर सेंट्रीफ्यूज के रूप में ये यूज हो रहा है। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में क्या हो रहा है, वही देखिए आप ध्यान दें। आप अगर बच्चे गांव के हैं तो वो इस बात से समझ सकते हैं, एक ज़माना था, आजकल तो खैर मशीनें आ गई हैं दूध बिलोने के लिए भी। दूध बिलेने का मतलब जब हम जो जमा हुआ दूध होता है हमारा, उस दूध से जब हम छाछ और मक्खन अलग करते हैं, जो वाइट मक्खन होता है उसको हम अलग करते हैं, तो देखिए उसको घुमाया जाता है ऐसे। और पहले तो माएँ दादी ऐसे करती थी, चलाती थी, और उसमें क्या होता था कि मक्खन ऊपर आ जाता था। तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से हल्की चीज़ें ऊपर आ गई और भारी चीज़ें नीचे रह गई, तो छाछ तो नीचे रह गई, और चूंकि मक्खन हल्का होता है वो ऊपर आ गया। यहाँ पर क्या होता है कि जब वॉशिंग मशीन आप यूज कर रहे हैं, तो देखिए वॉशिंग मशीन आप जानते हैं दो तरह की होती है, टॉप लोडिंग एंड फ्रंट लोडिंग।
अब फ्रंट लोडिंग, अब टॉप लोडिंग तो अब थोड़ी कम यूज़ करते हैं लोग, फ्रंट लोडिंग ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि टॉप लोडिंग में आपने देखा होगा एक बीच में बड़ा एक सिलेंडर टाइप होता था, नॉट सिलेंडर नेसेसरली बट थिक एक चीज़ होती थी, और उसके ऊपर ये एजिटेटर्स बोलते थे, कुछ निकले होते थे बाहर की तरफ। तो वो जब घूमते थे, जब उसमें पानी आपने डाल दिया, कपड़े डाल दिए, वो घूमते थे तो कपड़े घूमते थे, कपड़े एक दूसरे से रगड़ते थे। आपने उसमें डिटर्जेंट डाला ही हुआ है, और इस एजिटेटर का फायदा ये होता था कि वो चिपटते नहीं थे, उसके चारों तरफ घूमते रहते थे, एक दूसरे रगड़ते थे, जो मैल होता था, गंदगी होती थी, बाहर निकल जाती थी, और ये कपड़े ऊपर ही रह जाते थे, और जो भारी चीज़ जो पानी था वो नीचे चला जाता था, और एक समय के बाद उस पानी को ड्रेन आउट कर दिया जाता था। फ्रंट लोडिंग में वो आपका एक तरह का ड्रम होता है अंदर, और उस ड्रम में आपने देखा होगा छेद होते हैं जिससे कि पानी चले जाए, उसके आउटर ड्रम एक और होता है, और उसके बाद में जब कपड़े उसके अंदर जब ये रोटेट करता है तो कपड़े भी बहुत तेज़ी के साथ में रोटेट होते हैं, और फिर वहीं से कि गंद के साथ पानी बाहर निकल जाता है, कपड़े वहाँ अंदर सूखे रह जाते हैं, और वो पानी फिर नीचे निकल के चला जाता है। तो ये और इसको चलाता कौन है, ड्रम को दोनों को, इलेक्ट्रिक मोटर। तो इलेक्ट्रिक मोटर आपका यहाँ भी काम आ रहा है, इलेक्ट्रिक मोटर तो आपको चाहिए चाहिए। इसके बाद में देखिए आप, एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात मुझे याद आती है एकदम से, हम ये मानते हैं कि ज़्यादातर जब लिक्विड्स को हम थोड़ा ठंडा करते हैं, उनका टेम्परेचर कम करते हैं, तो उनका वॉल्यूम कम होता रहता है, और अल्टीमेटली वो सॉलिड में चेंज होते हैं। जब सॉलिड में बदलते हैं तो उस वक्त सॉलिड का जो वॉल्यूम है मिनिमम होता है इन कंपेरिजन टू दैट लिक्विड फॉर्म। लेकिन पानी एक ऐसा लिक्विड है, एक ऐसी चीज़ है, देखिए पानी तो हमारा जीवन है, बट ये बड़ा ही अनोखा पदार्थ है एक तरह से। और देखिए कि जब पानी को हम ठंडा करते हैं, इसका टेम्परेचर हम कम करते हैं, तो पानी के केस में ही ऐसा हो रहा है कि 4 डिग्री सेल्सियस पे आकर के इसका मतलब ये सबसे भारी हो जाता है। ये इसका टेम्परेचर कम करते हैं तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी पानी की 4 डिग्री सेल्सियस पे होती है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर और कम करेंगे, मतलब 4 से 3 पे लाएंगे, इसकी डेंसिटी कम होनी शुरू हो जाती है, और 0 पर जब आती है तो वो 4 डिग्री सेल्सियस के मुकाबले काफ़ी कम होती है डेंसिटी। मैं डेंसिटी की बात कर रहा हूँ, भारीपन की बात कर रहा हूँ। सो पानी सबसे भारी होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे। अब हमें ये सोचना चाहिए, ये तो देखें ठीक है, अगर केमिस्ट्री भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं और बायोलॉजी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि पानी के अंदर बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स रहते हैं, और सर्दियों में एक जगह ऐसी भी होती है जहाँ -20 डिग्री सेल्सियस, -15 डिग्री सेल्सियस, और वहाँ पर जब जो चाहे समुद्र हो चाहे झील हो जिसके अंदर मछली है या कोई दूसरा एक्वेटिक एनिमल है, तो अगर वो पानी जम जाएगा पूरा, तो ये कहाँ जाएंगे फिर, ये तो सब उसके अंदर पिस जाएंगे, और हो सकता है कि जिंदा भी ना रह पाए। तो यहाँ पर एक बड़ा ही अचंभित करने वाली सिचुएशन आती है कि 4 डिग्री सेल्सियस में पानी सबसे भारी होता है, तो आप जाइए उस जगह पर जहाँ टेम्परेचर, आउटसाइड टेम्परेचर करीब करीब -15 या -20 डिग्री सेल्सियस है। तो सबसे ज़्यादा उस ठंड का प्रकोप किसके ऊपर पड़ता है, जो ऊपरी लेयर पानी की होती है, पानी की जो सबसे ऊपर वाली लेयर है उसके ऊपर सबसे ज़्यादा इसका प्रकोप पड़ा। तो वो जो पानी है अचानक से उसका टेम्परेचर कम होता गया, और जैसे ही वो 4 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचता है, तो आपको तो पता है, मैंने अभी बताया कि 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी सबसे भारी होता है। और सबसे भारी चीज़ कहाँ जाती है, जब हम पानी में लोहा डालते हैं, लोहे का कोई टुकड़ा डालते हैं या पत्थर डालते हैं, चूंकि ये भारी होता है तो तलेटी में चला जाता है, बिल्कुल बॉटम में चला जाता है। तो जैसे ही पानी भारी हुआ, हैवीएस्ट हुआ एट 4 डिग्री सेल्सियस, वो पानी नीचे चला गया तलेटी में, और तलेटी वाला पानी ऊपर आ गया, या बीच में से पानी ऊपर आ गया। अब जो ऊपर आई पानी की लेयर, वो फिर किसके कॉन्टेक्ट में आ गई, -15 डिग्री सेल्सियस के, वो फिर 4 डिग्री सेल्सियस तक जाकर नीचे था, और ये चलता रहा। अब जो ऊपर लेयर बनती है, जब ऊपर 4 डिग्री सेल्सियस वाला, चूंकि नीचे भी पानी अब 4 डिग्री सेल्सियस वाला है, कोई 5 या 10 वाला तो है नहीं, तो वो हल्का तो है नहीं कि भारी पानी नीचे चला जाए। तो अब क्या होता है कि जैसे ही वो 4 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर कम होता है, अब वो नीचे नहीं जा पा रहा है, तो अब ये जमने लगती है लेयर ऊपर, और जब वो लेयर ऊपर जम जाती है एक पर्टिकुलर डेप्थ तक, फिर वो जाती रहती है। और आप सब जानते हैं कि जो आइस है इज़ नॉट ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट, तो नीचे से बहुत ज़्यादा हीट बाहर नहीं आती। तो एक ये आप देखें, कभी 1 मीटर का, कभी 2 मीटर का, इतना एक लेयर आइस की बन जाती है, और उसके नीचे पानी होता है। चूंकि अब 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी रहा, और ऊपर लेयर बन गई, नीचे तो पानी ही है, बॉटम पे पानी है, उससे ऊपर भी पानी है। अब उस पानी के अंदर जो हमारे एक्वेटिक एनिमल्स हैं पूरी सर्दियां निकाल देते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे गर्मी आती है, वो बर्फ पिघलना शुरू होता है, तो नेचुरली फिर जो है उसके बाद पानी की जो लेवल है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है इन कंपेरिजन टू व्हाट इट इज़ ड्यूरिंग विंटर्स। तो इन चीज़ों को हम इन पे ध्यान दें, समझें, और सिर्फ नंबर लाने के लिए ही ना उन बच्चों को पढ़ाएं, नंबर लाने के लिए ही बच्चे इस बात को ना पढ़ें।
तो ये मैंने सोचा कि आप लोगों से ये कुछ एग्जांपल्स मैं ज़रूर शेयर कर लूँ। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें बच्चों को जो टेक्स्ट में दिया हुआ है, जो थ्योरम दी हुई है, जो डेरिवेशंस दे रखे हैं, जो डेफिनेशंस दे रखे हैं, उनके साथ साथ अगर हम जो चारों तरफ चीज़ें हो रही हैं उनको भी बच्चों को हम उनसे जोड़ेंगे इन प्रिंसिपल्स को, और हर चीज़, मोस्ट ऑफ द थिंग्स विच आर हैपनिंग अराउंड वुड बी हैविंग सम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ साइंस। और उन प्रिंसिपल्स को अगर हम उसके साथ में बच्चों को थोड़ा सा आसान तरीके से बता देंगे तो उनको साइंस भी अच्छी लगेगी, उनको मैथ्स भी अच्छा लगेगा, और उनको चीज़ें रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और अच्छा परफॉर्म करेंगे। आपको फिर कई बार एग्ज़ाम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके एक ही एग्ज़ाम में बच्चे अच्छा परफॉर्म करेंगे, उनका भी स्ट्रेस कम, आपका भी स्ट्रेस कम, बोर्ड का भी स्ट्रेस कम, और चीज़ें बच्चों के लिए जो एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए वो हो जाएगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज के वीडियो को यहीं पे मैं समाप्त करता हूं और फिर मिलूंगा आपसे अगले एपिसोड में किसी नए टॉपिक के। नमस्कार, गॉड ब्लेस अस ऑल।